Hello friends, welcome to Pranal classes. Today we will discuss about literals. In our last video, I discussed keywords and identifiers. If you want to watch that video, you can go to the playlist and I would like to make a request. Please like my video and subscribe my channel. It really motivates me to provide you useful content. So let's start now. Literals are the constant values we assign to our variable while we do programming. Like a is the variable here, and I'm assigning any value to this variable. So this can be of string type literal, this can be of integer numeric type. Okay, this can be boolean, true, false, and special literal none and literal collection. So let's start with the string literals. String literals can be defined in single, double, or triple quotes. See, I have given some examples over here. As I go to run these commands, you will see it will successfully execute. But if I do some changes in it, see, I already assigned it in double quotes. If I am also writing ऑल्सो टाइपिंग डबल कोट्स, आप देखेंगे यहाँ पे इसको, ये आपको एरर, सिंटेक्स एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो आपको बेसिकली यहाँ क्या ध्यान में रखना है कि आप डबल कोट्स में डबल कोट्स को डिफाइन नहीं करेंगे एंड सिंगल कोट्स को सिंगल कोट्स में डिफाइन नहीं करेंगे। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एग्जाम्स में क्वेश्चंस, मैं बार बार बोलती हूँ, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं व्हाट द वैल्यू विल रिटर्न यू। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब string literals allows us to pass the escape sequences. है क्या ये? मीन्स ये नॉन ग्राफिक करेक्टर्स होते हैं। नॉन ग्राफिक करेक्टर्स लाइक जो हम कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप नहीं करेंगे बट दे विल परफॉर्म इट्स एक्शन। ठीक है, तो नॉन ग्राफिक करेक्टर्स को रिप्रेजेंट हम करते हैं एस्केप करेक्टर से। एंड अब एस्केप करेक्टर्स क्या होते हैं? एस्केप करेक्टर्स आर डिफाइंड बाय बैकस्लैश followed by one or more characters. I already told you in last video, backslash this and n is new character. F is form fit, T for tab and this is single quotes. ठीक है, तो ये सब हमारे क्या थे? एस्केप करेक्टर से। आई हैव ऑल्सो रिटन सम कमांड्स ओवर हियर। For backslash, I am taking this escape character backslash and backslash this. When you will execute this command, you will get this output there. And single quotes, the single quotes, escape character will be removed and single quotes will be shown in the output. Same for the horizontal tab is important. It will give you some spaces between your between whatever wherever you want some place, some space. And as backspace is used to delete the text. Okay, so these are the escape characters. I will execute one command for you that will be much useful. Print, yes, the tab is horizontal tab. See, it will produces some space between the words. Okay, I hope this makes clear to you. एंड स्ट्रिंग टाइप आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट्स को डिफाइन करेंगे। एंड नाउ द टाइम टू कैलकुलेट द साइज ऑफ स्ट्रिंग्स। अब क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि आपको एक कमांड दे दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको ऑल द टाइप ऑफ टोकन्स आर डिफाइंड देयर लाइक पंक्चुएटर्स, ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, आपको ये सब दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा टेल द साइज ऑफ दिस कमांड, दिस वेरिएबल। ठीक है, तो आपको वहां पे फाइंड करना होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि एक लेटर है तो वो एक ही साइज लेगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज 3, बट फॉर द एस्केप करेक्टर यू मस्ट रिमेंबर दिस एस्केप करेक्टर ऑलवेज टेक्स द साइज ऑफ 1। ठीक है, सो 1 प्लस एंड 1 फॉर बी, 1 प्लस 1 इज 2 and for Seema's pen it will be 11. How Seema
how many letters in Seema? 5. And this is one non-graphic character, one space for this, 6. And for S is 7, one is this is 8, 8 plus 3 is 4, 8 plus 3 is 11. तो इस तरह से आपको साइज को फाइंड आउट करना आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट फॉर द न्यूमेरिक लिटरल्स, न्यूमेरिक लिटरल्स डिफाइन करने के लिए अब न्यूमेरिक को हम कैसे करते हैं? बेसिकली हम तो डेसिमल्स में करते आ रहे हैं बचपन से, क्यों? हमने 0 से 9 तक के सभी डिजिट्स को यूज किया है और हम अब सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स 1 2 3 4 एंड इंटीजर्स, you know integers accept negative as well as positive values. So these are the decimals integers here, and octal integers are, octal always takes 8 digits, but it will take 0 to 7, not consider 8, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है। और ये नंबर सिस्टम में हमने पहले पढ़ा भी है। और तो ऑक्टल में हम क्या लेंगे? 0 से 7 तक के डिजिट्स लेंगे। एंड कीप इन माइंड, वी स्टार्ट व्हेन वी डिफाइन ऑक्टल integers, we start with 0, and 0 will be followed by O. O can be small or capital as anything, okay. And और हम क्या लेंगे यहाँ पे? हम 0, O and octal इंटीजर 0 to 7 तक की कोई भी डिजिट्स होंगी, ठीक है। अभी मैं आपको एक लेके भी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। 0 O 2 3, देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू रिटर्न कर देगा 18। अभी ये 18 वैल्यू इसने रिटर्न कैसे की, आई विल टेल यू। सी, अब ऑक्टल के लिए बेस हमारा क्या रहता है? 8 रहता है। मैंने यहाँ पे क्या लिया था? 23 लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 3, ओके, मल्टीप्लाई, स्टार्ट विद पावर 0, 8 की पावर क्या होगी यहाँ पे? 0 होगी। देन आई विल टेक टेंस प्लेस विच इज 2 multiplied by 8, power will be increasing now। 8 की पावर क्या हो जाएगी? 1। you know 1 is 8, 2 multiply 8 is 16, and 8, if the base has power 0, it will be 1 always, and 3 multiply 1 is 16 plus this is 3, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिखूंगी कि 3 multiply 1 is 3, तो डायरेक्ट इज आंसर क्या आ रहा है? 16 plus 3 is 19। तो ये आपको आंसर यहाँ पे शो हो भी रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप हेक्साडेसिमल के लिए करेंगे। हेक्साडेसिमल का क्या होगा? बेस 16 होगा। और ऐसे ही हम बाइनरी के लिए करेंगे। बाइनरी का बेस क्या होगा? होगा, ठीक है। बेस को हम रेडिक्स भी बोलते हैं। और हेक्साडेसिमल अब 16 बेस तो ले रहा है, तो यानी अब हमें 16 डिजिट्स को ये रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? हम 0 to 15 लेंगे। 0 to 9 इज ओके, बट फॉर 10 to 15 हम क्या करेंगे? वी विल डिफाइन इट बाय द लेटर्स, ठीक है, और ऑलवेज कैपिटल लेटर्स, ठीक है। बाइनरी के लिए हम बेस क्या लेंगे? 2 लेंगे। now move to the floating point literals। अब फ्लोट्स जी हमें डेसिमल्स वैल्यू भी डिफाइन करनी है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? वी हैव 2 फॉर्म्स। फर्स्ट इज फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल इज सेम जस्ट लाइक द डेसिमल, ठीक है। 2.0, 17.5 एंड दिस इज साइंड अनसाइंड रिप्रेजेंटेशन। एंड यहाँ पे रॉन्ग वे क्या है फॉर राइटिंग द रियल लिटरल्स और फ्रैक्शंस? 7, बिकॉज 7 क्या है? हमारा इंटीजर है। एंड क्या एक हमारे डेसिमल नंबर्स में 2 पॉइंट्स हो सकते हैं? नेवर, ठीक है। और क्या ये करेक्ट है? नो, बिकॉज इट इंक्लूड्स कॉमा इन बिटवीन, ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए क्या होगा? एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए यहाँ पर क्या होगा? हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन इज मैंटीसा, सेकंड वन इज एक्सपोनेंट। मैंटीसा इज, सी हियर इज एग्जांपल 5.8। इन्होंने क्या किया है कि 5.8 है, 5.8 को फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग इट इन फ्रैक्शन फॉर्म। तो मैं इसको क्या बनाऊंगी?
वन प्लेस डिजिट है, डेसिमल डिजिट है, तो मैं इसको बाय 10 लिख रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइंग बाय 10 कर रही हूँ। ठीक है, इससे होगा क्या, मुझे एक्सपोनेंट के केस में वैल्यूज को लाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एज इट इज रखूंगी। ठीक है, मैं इसको 10 रखूं या मैं इसको 10 की पावर 1 रखूं, बोथ आर सेम थिंग। नाउ द इन डिनोमिनेटर 10 इंटू 10 इज 100 एंड अभी मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो दैट विल बी 0.58। ठीक है, सो दिस विल बी मेंटिसा, दिस विल बी मेंटिसा एंड दिस विल बी exponent. ठीक है, I hope this makes clear to you and when you can do by this कि आप यहाँ पे लेफ्ट में मूव करते जाएंगे डेसिमल्स को, तो पावर आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। ठीक है, अभी वैलिड देखिए, वैलिड एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, आपके पास दोनों होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक भी होगा तो आपका काम चल जाएगा, एक्सपोनेंट होगा मैंटिसा होगा, नहीं, आपके पास दोनों होने चाहिए। ठीक है, और एक्सपोनेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे -1 भी ले सकते हो आप, अगर मेरा डेसिमल मैं राइट की तरफ लेके जाती तो। ठीक है, इनवैलिड क्या है यहाँ पर, इनवैलिड है कि आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंट में वैल्यू नहीं दी गई है, दैट इज इनवैलिड। ठीक है, और यहाँ पर ये क्यों वैलिड है, क्योंकि ये डेसिमल को कंसीडर कर रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन पार्ट को कर रहा है, इसलिए इनवैलिड है। और बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, बुलियन लिटरल्स यू नो वेरी वेल, बुलियंस रिप्रेजेंट ट्रू और false. True means 1, false means 0. When you execute this query in Python, this will return you 2 because true 1, true gives us 1 always and 1 plus 1 is 2. So last one is the special literal. Special literal is none. When we want to define null value, we don't want to show any data there, हम वहां पर क्या यूज करेंगे, स्पेशल लिटरल्स का यूज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द लिटरल्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। Thank you for watching my video. Please subscribe and like.